हेलो एवरीवन। टुडे अभी हम लोग शिप पे कंपास इरर बेसिकली हम लोग लेते हैं। जो इस फील्ड से है उसको पता होगा, तो उसका मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे लिया जाता है। बेसिकली वो हम लोग शिप का डायरेक्शन, शिप का जो जैरो में कितना इरर है और हमारा कंपास में कितना एरर है, तो उसको करेक्शन उस पर लगाते हैं। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं जो हर एक वॉच पे लेना होता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी ये कंपास इरर लेने के लिए लगाया है अजीमुथ। We have to align this and you can see this, it is coming 052 and we have to align with the sun, and we have to align this little bit. Wind is there, so maybe the wires will be broken. We have to align this water drop in this between, and then we have to adjust this mirror. And after the adjusting the mirror, the sun reflection will fall in this line, and after falling this will reflect here that is the exact angle. So right now it is reflecting on 052. The reflection, little bit less reflection because sun is not accurate due to the cloud. So now I will show the procedure to calculate this. So you can see little bit the cloud is there, so we are not getting accurate, but although we are getting sometime it is accurate. The main procedure is that we should track during the rising time, because today when the sun rises, that time was not so much of clear because of the cloud. So that's why we are taking it. Now I will show you the procedure of calculating. So during the time of the observation, we have to write these all the things the same time, like latitude, longitude at the time, position of the ship, and the GMT, LMT. So GMT we can see from the this GPS, and LMT also we can see our local time. So like this we have the local time, and variation we will get from the ships like this. So I will show you how to check the variation also. So after you can see, so like this flag, this is the symbol, this is the symbol, this symbol. So we have to select this symbol, or you can just click on pick report. So you will have this tab, which report, which like information you want. So I need the magnetic variation information. So I will go on magnetic variation. You can see that this side is selected. So this place will have the same amount of variation. So variation is that generally change hota hai, place to place it varies. So for this place, for this all the place, the variation, magnetic variation will be, we will select, then we'll get the variation. So you can see, and the procedure is almost same, but it will differ from which how you have to pick the report or how you have to select the information. It depends upon the types of the ECDIS, which type of ECDIS you are using. So अभी जैसे मैं अपना फ्रूनो ECDIS यूज कर रहा हूँ, तो फ्रूनो ECDIS में इस टाइप से ही प्रोसीजर फॉलो करना है। और अभी जैसे मैंने पिक रिपोर्ट किया और ये रिपोर्ट आ गया, तो अभी हमारा जो मैग्नेटिक वेरिएशन है, सो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन इज -16 डिग्री, और जो वैल्यू ऑफ एनुअल चेंज इन मैग्नेटिक वेरिएशन 8 मिनट, दिस 8 मिनट है। और आपका ये जो वैल्यू जो चेंज हो रहा है ना, ये जो वैल्यू आपका ये 16 डिग्री का, ये 2018 का है। तो नाउ वी आर इन 2024, सो वी हैव टू calculate for 2024. That I will show you how to calculate. And this minus, so minus means the westerly. So here for reference we have written already. So if magnetic variation value is minus, that means westerly. If plus means nothing will return, so that it will be the easterly. So like this magnetic variation 8 minute, that this is the east, ये ईस्ट का डायरेक्शन है और हम लोग को इसको कैलकुलेट करना है। सो आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट।
ओके, सो वी हैव सीन द वेरिएशन ऑन द एग्रीज, सो वी हैव नोटेड डाउन। तो अभी इसमें मैंने 2018 का था, ये आपका 16 डिग्री वेस्ट था, क्योंकि माइनस था तो वेस्ट हो गया होता है। और वेरिएशन चलता है 8 मिनट ईस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव में था तो 8 मिनट ईस्ट एवरी ईयर दिस इज चेंजिंग। तो अभी क्या हमारा टोटल ईयर हो गया 2018 से ये 2024 चल रहा है, तो 6 ईयर्स का हो गया अपना डिफरेंस। तो टोटल जो वेरिएशन चेंजेज हो रहा है 6 × 8 मिनट ईस्ट हो रहा है, तो टोटल 48 मिनट ईस्ट हो गया। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग डिग्री में, तो ये 48 को जब कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 60 तो 0.8 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल वेरिएशन हो जाएगा 16 मिनट ईस्ट प्लस माइनस 0.8 डिग्री ईस्ट। तो ये हम लोग जब इसको करते हैं, जब हम लोग अपोजिट नेम होता है, तो जब अपोजिट नेम होगा तो माइनस करना है, और जो सेम नेम होगा तो प्लस करना है। थोड़ा मैं इसको जल्दी जल्दी आगे का प्रोसीजर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ओके, सो अभी हमारा ये पूरा डाटा हो गया, वेरिएशन 15.8 डिग्री वेस्ट हो गया, और अपना मैग्नेटिक कंपास 168 डिग्री है, और जैरो 143 डिग्री है। ये हम लोग को यहाँ से मिला। जो शिप का जो ओरिजिनल जैरो होता है, ये जैरो कंपास ये दिखा रहा है 143 डिग्री, और मैंने ये मैग्नेटिक कंपास दिखा रहा है 168 डिग्री। तो अभी हम लोग ये जैरो और मैग्नेटिक वहाँ पे लिए हुए। ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट जीएचए एंड डिक्लिनेशन। सो जीएचए और डिक्लिनेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉटिकल एल्मेनाक चाहिए। सो नॉटिकल एल्मेनाक ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया है, ये 2024 का नॉटिकल एल्मेनाक है। तो ये आपको इसका ये बिना इसके नॉटिकल एल्मेनाक के यू कैन नॉट, देयर इज अनदर प्रोसीजर आल्सो टू कैलकुलेट द इंक्रीमेंट एंड जीएचए, बट फॉर जीएचए फाइंडिंग यू हैव टू सी द नॉटिकल एल्मेनाक ओनली। सो अभी आप ये देख रहे हो 2024 का मैंने खोल लिया है। तो अभी मैं आज की डेट का नॉटिकल एल्मेनाक, आज की डेट का जीएचए में जाऊंगा। तो आज हमारा अभी अपने को कैलकुलेशन चल रहा है 13 मई 2024 का। तो मैंने 13 मई का इस तरह से जो ये खोल लिया नॉटिकल एल्मेनाक। इसमें हमें जाना, ये 12, 13, 14 का एक पेज पे दिया रहता है। तो ये 12 डेट का है, ये 13 का है। अब इसको जीएचए हमें निकालना है सन का जीएचए, क्योंकि हमने सन का लिया। अगर मून का आप निकालते हो तो मून का इसमें देखना है। तो अभी हम सन का देख रहे हैं, तो अभी सन का 13 मई का देखना, और जीएचए देखने का जो प्रोसीजर है ये 13 डेट पे जाना है। और दूसरा जो किस आवर में आपने देखा, ये जीएमटी का टाइमिंग रहता है। तो जीएमटी का आवर क्या होता है, अभी जीएमटी का आवर हमारा 0803। तो अभी मैं 08 आवर में देखूंगा। सो 08 आवर में आप ये देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो 08 आवर का 300 है, तो आप देख सकते हो जो 13 मई का 08 का 300 डिग्री है और 54.8 मिनट। सो विल राइट 300 डिग्री 54.8 मिनट। और उसी टाइम का डिक्लिनेशन भी हमें देखना है। तो उस टाइम का जो डिक्लिनेशन हमारा 18 डिग्री और हमारा 32.1 मिनट नॉर्थ, जो डायरेक्शन यहाँ दिया रहता है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ ऊपर नॉर्थ दिया जाता है, और ये डिग्री है, और इसके बाद ये सब मिनट है। सो इधर भी रहेगा तो 18 डिग्री 30 मिनट 31 मिनट 32 मिनट 32.8 मिनट लाइक दिस। और इसी का सेम मेरे को डिक्लिनेशन का हमें करेक्शन देखना होता है। सो करेक्शन आप देख सकते हो, ये वाला करेक्शन है, ये D06 का करेक्शन मेरे को जाके देखना है। ये मिनट वाले पेज में देखना है हमारा, जो सन का जो इंक्रीमेंट वाला जो पेज होता है उसमें मिनट वाला पेज, इंक्रीमेंट पेज, उसमें जाकर के हमें बेसिकली इसका डिक्लिनेशन का इंक्रीमेंट और जीएचए का इंक्रीमेंट फॉर द मिनट, क्योंकि अभी हम जो ले रहे हैं इसमें आप देख सकते हो 8 आवर का ही कैलकुलेट किए हैं। सो 3 मिनट का मेरे को चेक करना है कि क्या इंक्रीमेंट होगा। सो दैट वी विल गो ऑन द इंक्रीमेंट पेज। ओके, सो आई हैव ओपन द इंक्रीमेंट एंड करेक्शन पेज फॉर द 2 मिनट, बट वी रिक्वायर्ड फॉर 3 minutes. So 3 minutes is this side. So 2 minutes and 3 minutes. So 3 minutes we have to go for second. So second also. So 3 minutes second. So we have considered 00 second. So for 00 second I will zoom it out so that you can see. So तो GHA का जो है, जो इंक्रीमेंट होगा ये वाला होगा 00 सेकेंड का, ये 0 डिग्री 45 मिनट। सो वी विल राइट हेयर 0 डिग्री 45 मिनट। So this is the increment for the GHA and now we will find the declination increment. So declination का जो इंक्रीमेंट होता है ये वाला लाइन होता है, जो VA और D करेक्शन लिखा हुआ है ना, तो इस पर अभी हमें देखना है इस पर D06, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे मैंने देखा था D0.6 का था, तो मेरे को इसका देखना है। तो D06 का 0 है,
तो आप देख सकते हो इसमें 0.6 का डी करेक्शन 0 है, तो वी विल ऐड 0, मीन्स कुछ भी करेक्शन नहीं। नाउ वी विल ऐड दिस थिंग्स। और इसमें क्या होता है, अगर कभी कुछ अदर वैल्यू होता है तो वी विल ऐड और सब्सट्रैक्ट, दैट विल डिपेंड अपॉन द वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लाइक अभी आप इधर देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट सेम ही है 0. किसी में आप देखोगे तो वो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, इस वाले में देखो आप इधर, तो इसमें आप देखो यहाँ पे तो 0.5, 0.5, 0.6, सो ये इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कभी अपने को 0.7, तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कभी भी मेरे को किसी भी वैल्यू का अगर डी करेक्शन निकालना है, so now we final got the GHA, this is the final GHA 300 degree 99.8 minutes, so we'll convert it into the degree, and this we have got the declination 18 degree 32.1 minute north. So we have sign for the declination but we don't have the any sign for the GHA का कोई sign नहीं होता। So after conversion we have 301 degree 39.8 minute GHA and this, and now we'll calculate the next step, so we'll calculate the LHA and P. सो फॉर इजी रेफरेंस आई हैव ऑलरेडी रिटन द स्टेप, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि कैसे कंपासिटर कैलकुलेट करना होता है शिप पे। तो ये हमारा स्टेप है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर रेफरेंस पर्पस। ये स्टेप है और इसके बाद भी इधर कुछ स्टेप मैंने इधर लिखा हुआ है। सो आप देख सकते हो इधर भी कुछ स्टेप मैंने लिखा हुआ है और कुछ स्टेप इधर भी है और इधर भी कुछ स्टेप है, ये भी आपका। तो बेसिकली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रोक के रखता हूँ अगर किसी को रेफरेंस के लिए चाहिए हो तो। और इधर भी आप देख सकते हो कंपासिटर का, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी बेसिकली हमें LHA निकालना था। LHA निकालने के लिए हमें LHA निकालने का जो बेसिकली फार्मूला होता है या जो मेथड होता है वो होता है GHA। अगर आपका लॉन्गिट्यूड ईस्ट है तो GHA में ऐड कर देना लॉन्गिट्यूड को, अगर आपका लॉन्गिट्यूड वेस्ट है तो GHA माइनस लॉन्गिट्यूड वेस्ट इक्वल टू LHA होता है। और अभी उसी तरह मैंने LHA इक्वल टू GHA, क्योंकि हमारा जो लॉन्गिट्यूड था वो ईस्टर्ली था, आप देख सकते हो हमारा लॉन्गिट्यूड ईस्टर्ली था, तो मैंने इसलिए LHA इक्वल टू GHA प्लस लॉन्गिट्यूड ईस्टर्ली किया हूँ। तो ये दोनों ऐड करके मेरा ये 311 डिग्री 19 डिग्री 12 मिनट ये आ गया है हमारा 19। तो इस तरह ये हमारा LHA आ गया है। अभी मैं इसको P में कन्वर्ट करूँगा। सो अभी P कैलकुलेट करना है। तो P के लिए क्या होता है, P जो हमेशा ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। तो अभी क्या है कि हमारा जो P है, क्योंकि अभी P अगर बेसिकली GHA इक्वल टू P हो जाए, LHA इक्वल टू P हो जाता है। तो अभी लेकिन क्या है कि LHA हमारा यहाँ पे जो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको मेरे को 180 डिग्री से कम करना है। तो इस कारण हमें इसको 360 में माइनस करना है, क्योंकि 180 डिग्री से कम होना चाहिए P। तो अभी मैं इसको 360 में माइनस कर दूंगा। सो 360 मैंने माइनस कर दिया। सो बिकॉज P इज लेस देन, सो P इक्वल टू 48 डिग्री 40 मिनट 40.5 मिनट। सो अभी मैं अब इसको ABC कैलकुलेट करूँगा। सो बेसिकली अभी ABC मैं इसमें कैलकुलेट करूँगा। सो ABC कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है जो हमारा A इक्वल टू 10 लेट अपॉन 10 P, B इक्वल टू 10 लेट अपॉन 10 P और C A प्लस माइनस B होता है, वो डिपेंड करता है इस दोनों के साइन के ऊपर। तो अभी मैं अभी हमने A कैलकुलेट किया तो A इक्वल टू 10 लेट अपॉन 10 P, तो अभी मैंने कैलकुलेट किया तो 0.4310 आ गया। तो ये जो हमारा है मिनिमम 4 to 5 वैल्यू तक लेना है पॉइंट में, तब एग्जैक्ट आएगा हमारा आंसर। तो ये नॉर्थ, ये का जो वैल्यू नॉर्थ, अब ये नॉर्थ कैसे है, इसका बेसिकली एक फार्मूला है या जो समझ लो इसका। तो ये जो है नेम किया जाता है अपोजिट टू लेट। अगर LHA जो है हमारा, LHA जो हमारा इनिशियल LHA था जो 311 डिग्री वाला, तो वो 270 और 90 के बीच में आता है। तो और अगर A इज नेम सेम एज द लेटीट्यूड इफ LHA इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 के बीच में आता है। तो अभी हमारा LHA इस वाले क्वाड्रेंट में लाइक करता है, जो ऊपर वाला क्वाड्रेंट होता है जो बेसिकली, तो उस पर लाइक करता है, तो वो हमारा अपोजिट टू लेट हो गया। तभी हमारा लैटिट्यूड क्या था, लैटिट्यूड हमारा साउदर्ली था। अभी आप देख सकते हो जब हमने लैटिट्यूड लिया था तो लेट साउदर्ली था, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ। तो मैंने नॉर्थ लिख दिया। अभी अब B कैलकुलेट करेंगे। B इक्वल होता है 10 डेक अपॉन साइन P। अभी हमने B कैलकुलेट कर लिया, 10 डेक अपॉन साइन P कैलकुलेट करके 0.4464 है। अब इसका जो नेमिंग होता है, जो नॉर्थ होता है, वो कैसे होता है, वो आपको यहाँ पे आप जो इस वाले सीट में देखो,
तो मैंने लिखा है बी इज नेम्ड सेम एज डिक्लेनेशन। सो जो डिक्लेनेशन का आपका जो नेमिंग था वो जो हमें एल्मनक टेबल से मिला था वो सेम नेमिंग देना है। तो अभी जो एल्मनक टेबल से हमें डिक्लेनेशन का नॉर्थ मिला था तो इट विल बी नॉर्थ। इसके बाद हमें सी कैलकुलेट करना है। सी कैलकुलेट करने के लिए ए प्लस बी, इसलिए क्योंकि सेम नेम है। सो आप देख सकते हो सी इज नेम्ड इफ़ ए प्लस बी, अगर सेम नेम है तो ऐड करना है और अगर अपोजिट है तो माइनस करना है। तो अभी हमने इसको सेम नेम था ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद 0.8744 नॉर्थ आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है अजीमुथ। सो आई विल शो द प्रोसीजर। सो अभी हमने 10 अजीमुथ कैलकुलेट किया 1/c कोसलेट 0 ये करके कैलकुलेट करके हमारा 1.2656 था। 10 इनवर्स हमें सी करना है क्योंकि अजीमुथ इक्वल टू होता है, इसको उल्टा करना है। तो 10 इनवर्स अजीमुथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 51.7 डिग्री। अब ये नॉर्थ और ईस्ट ये प्रीफिक्स सफिक्स ये कैसे लगाया जाता है, तो ये बेसिकली इसका भी जो है एक कैलकुलेशन है जो कि मैं इसमें आपको ऑलरेडी बताया हुआ हूँ। तो इसमें क्या होता है कि नेम ऑफ एजिमुथ जो प्रीफिक्स होता है जो सेम एज सी होता है। जो सी का जो वैल्यू था हमारा, सी का जो नेम क्या था नॉर्थ था, तो वो नॉर्थ यहाँ चला जाएगा। और ये कहाँ से है, ये है हमारा कि अगर वेस्ट है इफ़ आफ्टर मेरिडियन पैसेज और LHA लेस देन 180 डिग्री, लेकिन हमारा LHA तो मोर देन 180 डिग्री आया था। तो अगर मोर देन 180 डिग्री आया तो इफ़ LHA इज मोर देन 180 डिग्री देन सफिक्स विल बी ईस्ट इफ़ बिफोर मेरिडियन पैसेज। तो अभी हमारा LHA आप देखे थे स्टार्टिंग में कि हमारा LHA जो आया था वो हमारा 311 डिग्री आया था। तो मोर देन 180 डिग्री ईस्ट हो गया, तो हमने यहाँ पे ईस्ट लिख दिया है। अब इसका नॉर्थ ईस्ट है, इसका जो वैल्यू आता है नॉर्थ ईस्ट, इसका ये अजीमुथ है। अब ये हमारा अजीमुथ है। सो अभी ये हमारा तो ये आ गया, तो इसको ट्रू अजीमुथ में कन्वर्ट करना है। तो ट्रू अजीमुथ में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट है तो मतलब सेम ही रहेगा। तो 51.7 डिग्री ट्रू। सो विल राइट लाइक दिस। सो अभी हम लोग ऑब्जर्व अजीमुथ जो हमने स्टार्टिंग में जो सन से लिया था वो आप देखे थे कि 52 डिग्री आया था। तो इसके बाद जो हमारा ट्रू अजीमुथ जो भी मैंने कैलकुलेट करके निकाला वो 51.7 डिग्री आया। अब मैग्नेटिक अजीमुथ 069 ये कैसे हुआ, ये हुआ बेसिकली जब हमने जैरो लिया था 143 था, मैग्नेटिक 160 है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, तो वो जैरो से मैग्नेटिक का 17 डिग्री का है। तो जो हमारा ऑब्जर्व जो ये जैरो जो ऑब्जर्व अजीमुथ है, जो जैरो अजीमुथ है वो भी और मैग्नेटिक अजीमुथ दोनों का जो डिफरेंस सेम ही होना चाहिए। तो मैंने 17 डिग्री इसमें ऐड कर दिया। ये प्रोसेस है बेसिकली कंपास एरर निकालने का। तो मैंने जो 70 डिग्री ऐड किया तो ये 69 डिग्री हो गया। अब इस दोनों का जो बेसिकली डिफरेंस होता है वो हमारा जो मैग्नेटिक एरर कहलाता है। तो वो एरर जो है अभी हम इस दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा 17.3 डिग्री वेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो मैग्नेटिक अजीमुथ था हमारा ट्रू अजीमुथ से ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है अगर ट्रू अजीमुथ से तो हमारा एरर वेस्ट होगा। और ये कम रहेगा ट्रू से, अगर मैग्नेटिक अजीमुथ कम रहेगा तो एरर ईस्ट होगा। तो अभी हमारा ज़्यादा था तो वेस्ट हुआ एरर। अब वेरिएशन हमने कैलकुलेट किया था 15.8 डिग्री वेस्ट। तो अभी जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके जब इस दोनों का कंपेयर करना है तो इस दोनों के कंपेयर से हमें डेविएशन निकलता है। सो डेविएशन 17.8 और ये वेस्ट सेम नेम है तो हमने माइनस कर देना है। माइनस कर दिया तो 1.5 डिग्री वेस्ट हो गया। सो हमारा जो फाइनल कैलकुलेशन है ये एक ही आंसर ये हो गया जो हमारा डेविएशन का आंसर हो गया, और दूसरा आंसर हो गया कंपास एरर जो मैग्नेटिक एरर बेसिकली होता है वो हमारा हो गया। ये दोनों आंसर हो गया जो हमें सिप पे निकालना होता है। तो एक एरर हो गया 17.3 डिग्री वेस्ट का और डेविएशन 1.5 डिग्री वेस्ट का। और इसको हम लोग को कंपास एरर लॉग बुक में भी एंट्री करना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे एंट्री करना। सो ये हमारा जो कंपास बेसिकली ऑब्जर्वेशन बुक है। सो इसके अंदर हम लोग को डाटा फिल करना होता है इस तरह से। तो अभी आज की डेट में मैंने डाला है 13.8 और इधर से आप देख सकते हो ये GMT है, LMT, सिप्स पोजिशन, सिप्स बियरिंग ऑब्जेक्ट, जैरो स्टैंडर्ड, ये सब सारा कुछ है। तो अभी इस तरह से मैं इसके अंदर डाला। तो पहला था हमारा GMT का, तो GMT मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर LMT का था, फिर LMT मैंने डाल दिया। फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल दिया। फिर ये जैरो था, जैरो डाल दिया। फिर ये मैग्नेटिक था, मैग्नेटिक डाल दिया। फिर ये जो हमारा ट्रू बेरिंग जो हमने ट्रू अजीमुथ निकाला था वो डाला मैंने। और ये हमारा जो हमने ऑब्जर्व करके सन कर लिया था 52 डिग्री वो मैंने डाल दिया। ये मैग्नेटिक अजीमुथ था वो डाल दिया। और ये हमने किस ऑब्जेक्ट से लिया तो मैंने ऑब्जेक्ट सन था। और हमारा जैरो एरर कितना था, जैरो एरर था बेसिकली जो डिफरेंस बिटवीन दिस टू है तो वो था हमारा 0.3 हाई, ये हाई था।
क्योंकि हमारा ये 2 से हमारा जेरो ज़्यादा है, इस कारण से हाई। अगर 2 से जेरो कम रहेगा तो लो होगा। और वेरिएशन, ये वेरिएशन है जो हमने एक्डिस से निकाला था, वो वेरिएशन है। और ये हमारा सॉरी ये एरर है 17.3, ये हमारा एरर है जो कि हमें कैलकुलेशन करके मिला था कंपास एरर। और ये वेरिएशन है जो हमने 15.8 डिग्री वेस्ट जो हमने एक्डिस से निकाला था। और ये डेविएशन है जो हमने कैलकुलेट किया 1.5 डिग्री वेस्ट। और ये कौन सा, ये पोर्ट रिपीटर है। तो किधर से हम लोग बेसिकली किस साइड से हम लोग लिए थे, तो हम लोग जहाज के पोर्ट साइड से लिए थे, तो वो हमारे। तो इस तरह से हमें ये फिल करना है। एवरी बार यू हैव टू फिल दिस लाइक दिस। सो ओके, सो टुडे आई विल क्लोज माई ब्लॉग। एंड इस तरह से कंपास एरर शिप पे लिया जाता है। बेसिकली सबको पता होता है, सारे ड्यूटी ऑफिसर को एवरी वॉच में लेना होता है। ये सिर्फ सन से नहीं लिया जाता, ये किसी भी ऑब्जेक्ट से, मून से, स्टार से। सो नाइट का टाइम है तो नाइट में सन नहीं रहेगा तो मून होगा या स्टार होगा, तो उसके थ्रू आपको ये लेना होगा। और ये कंपलसरी है, ये आपको एवरी वॉच वी हैव टू टेक। सो इस तरह से मैनुअली कैलकुलेशन इस तरह से हमें करना होता है। यही हम जब सेकेंडमेट और चीफमेट में जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए भी जाते हैं, तो इसी तरीके का प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और हमें कंपास एरर निकालना है। और डेविएशन, अगर डेविएशन ऑफ द शिप पूछा जा रहा है तो उसमें हमें डेविएशन ऑफ द शिप निकालना है। तो ये हमारा डेविएशन ऑफ द शिप निकला है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर। होप दिस विल हेल्प यू इन द on the ship also, as well as in the when you will give for the exam or for the second mate and chipmate. So that will also help for you. Thank you. We'll meet in the next vlog.